Okay, so I guess we should start right now because we are already at 8:35 and my throat is not okay till now, so still a sore throat, so you might hear my croaky voice during the lecture. Okay, so we are moving forward, and this time the topic at hand is data types. Uh, Again, the course is Introduction to Programming. I have started to record this session as well. So as soon as the session is complete, I will try to upload that. Um, there's just one slight hiccup. Right now, I have electricity, but in case the electricity goes, so I will have about half an hour of battery life, and then because I'm sitting on a PC, so I have a UPS, separate UPS for this. So I have half an hour of battery life, so I will move forward faster. So it's quite likely that the electricity will go. So we'll see like how to manage then. Okay. Um, so first of all, what data is? I will start if no before we begin. I will keep checking your chat from time to time, but it's not allowing me to look at your chat while I'm in the presentation mode. So I'll keep looking at your chat from time to time. So then I will tell you like I'm looking at the chat, and then you can ask your questions, or you can just type your questions there, and I will revert to them as I look into the chat. Okay, so first of all, like what data is, a computer program works by manipulating data. It, however, needs to know what kind of data it is processing. What this means is that in computer everything is zeros and ones, uh, but the thing is like, okay, so if everything is zeros one, how do we say what an A is, or what a B is, or what a word is? Okay, so computer, what it does is it manipulates that zeros and ones into meaningful data, and then whenever it is working, it needs to know like what kind of data it is processing. And whenever you perform some operation on the data, they lead to a meaningful results. So think of it this way, like when you are working in a calculator, so you input some data, so the data is either an integer value or a decimal value. So whenever you enter your data, you do some operation on it. So you add or subtract or multiply that data, or you find a sine or cosine of that data. And whenever you do that operation, it leads to some meaningful result, the result that you are looking for. Computer behave the same way. The only difference is that in computers, uh, the equation that you're going to solve is going to be much bigger. Uh, so, so, so that's normally how it works. And but if the database being entered is wrong, the result will also come out to be wrong. So the computer does not magically fix the input data. If you put in the wrong kind of data, the data you will get will also be wrong. So, so the first thing that comes to mind is what is a byte? Okay, so so in a computer there are actually billions of transistors. So when the transistor was created, that is what led to a computer. Okay, a transistor is a tiny switch that is activated by electronic signals it receives. Okay, so if it receives a signal, so it goes to an on state, and when it doesn't receive the signal, it goes to an off state. The on and off states of a transistor is reflected by digits ones and zeros. So for example, suppose there are a lot of transistors and some transistors are getting the current, so they turn on, and the rest of the transistors are not getting the current, so they are turned off. So whatever transistors are getting the current, so you count them as ones, and those which do not get the current, you count them as zeros.
So in essence, a transistor can store just two values. Either the current is flowing through the transistor, so the value is 1, or the current is not flowing through the transistor, so the value is 0. Okay, so but if you have eight such transistors at a location, so if you combine those eight, to group those eight transistors together, so you you call that as one byte of information. Okay, so the first transistor can be 0 and 1, the second transistor can be 0 and 1, the third transistor can be 0 and 1, and so on. So when you collect those eight transistors together, you call that a byte. And in the byte, there are 8 bits of data. So every transistor is storing 1 bit of, sorry, 1 bit of data. And so it can have either 0 or 1. Okay, so that is how a byte works. Let me see if you have some questions. Meeting control. So is it clear till now? Yes, sir. Sir, what is difference between bit and byte? Um, a bit मैं लिख देता हूँ कि a single transistor resistor can store either 0 and 1. ठीक है, तो इसमें 0 and 1 स्टोर हो सकता है एक बिट के अंदर. ठीक है, वाई इज 0 and 1 इन द कंप्यूटर. देखें आपके कंप्यूटर में या तो करंट फ्लो कर रहा है या फिर करंट फ्लो नहीं कर रहा. ठीक, तो करंट तो वैसे हर वक्त फ्लो कर रहा होता है, उसमें वोल्टेज वैल्यू होती है. देखा नहीं है आपके पास जो आपके पास स्टेबलाइजर होता है, उसमें बिजली जाती है एकदम से, उसकी सुई चलना शुरू होती है, बताता है वोल्टेज कितना हो गया, वोल्टेज कितना हो गया. ठीक है, तो स्टेबलाइजर जो है वो आपके करंट को स्टेबलाइज करता है. ठीक है, जो जो आपका करंट जो है वो उसमें स्पाइक्स आ सकते हैं. ठीक है, करंट बहुत कम हो सकता है, करंट बहुत ज्यादा हो सकता है. करंट बहुत कम हो तो उसको दोबारा वो 220 पे लेकर आता है, करंट बहुत ज्यादा हो तो उसको 220 पे लाके रखता है. तो स्टेबलाइजर इसलिए स्टेबलाइजर कहते हैं बिकॉज इट स्टेबलाइजेस द करंट. only the other people can answer your question, so yes, it's your internet. So उसमें स्टेबलाइजर ये करता है. अब होता ही है कि जब भी आपका करंट पास कर रहा होता है, जब भी आपका करंट पास कर रहा होता है तो एक खास वोल्टेज वैल्यू से ज्यादा अगर करंट होगा ना, तो उसको ये ट्रांजिस्टर एज 1 कंसिडर करेगा. ट्रांजिस्टर कहेगा कि मैं ऑन हो गया हूँ, आई एम ऑन. ठीक है, और जैसे कि आप वो ले लें कि लाइट है. ठीक है, लाइट कैसे जलती है? लाइट ऐसे जलती है कि उसमें एक खास क्वांटिटी का करंट आता है, तो उसमें हीट और वो उस करंट को हीट और लाइट में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, लेकिन अगर करंट ही बहुत कम हो तो लाइट आपकी नहीं जलेगी. ठीक है, तो ये सेम प्रिंसिपल है कि आपके जो ट्रांजिस्टर है उसमें खास वैल्यू का करंट आएगा. अगर उस वैल्यू से ज्यादा करंट है तो वो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है, तो उसको हम वन कहते हैं. अगर उस वैल्यू से कम है करंट तो उसको हम कहते हैं कि इसमें से इसकी वैल्यू ऑन है, इसकी वैल्यू, इसकी स्टेट ऑफ है, तो उसको हम जीरो वैल्यू देते हैं. ये तो इस तरह हम स्टोर करते हैं कि ये 0 1 है. हम ए ट्रांजिस्टर क्यों यूज करते हैं वो आपको पता चल जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा. ठीक है, मेनली जो वजह है वो है कि आप चूंकि टू वैल्यू स्टोर कर रहे हैं ना, कि यू हैव 0 1, यू डू नॉट हैव 0 1 2 3, और यू डू नॉट हैव 0 1 2 3 4 5. ठीक है, तो आगे पास 0 1 है, तो इन्होंने हर चीज को टू के फैक्टर में रखी है. ठीक है, आप 10 का भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कहा कि हम 8 पे रखेंगे. ठीक है, ये खुद हमने डिसाइड किया है. इसमें कोई कोई वो नहीं है, कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है. ये जिन्होंने जो कंप्यूटर बनाते हैं खुद डिसाइड किया कि हम वैल्यूज ऑफ 2 पे रखेंगे. वेटिंग रूम में कैसा? वेटिंग रूम तो मैंने ऑफ किया हुआ है. देखना पड़ेगा. पार्टिसिपेंट्स, वेटिंग रूम तो ऑफ किया हुआ है, सब लोग तो बगैर वेटिंग रूम के ज्वाइन किए. नहीं मतलब वेटिंग रूम तो ऑफ है, तो मास के साथ कोई मसला है. मैं इनवाइट, तो मैं कोई वेटिंग रूम में कोई नजर आएगा तो मैं उसे इनवाइट करूंगा.
मुझे देखना पड़ेगा इसका participants. Da, da, da. I have disabled the waiting room now. Anyway, uh, okay. So, every transistor stores either zero and one. So if it is on, it's called zero. If it's off, it's called one. That's why if it's on, it's called one. If it's off, it's called zero. Uh, and uh, and then the collection of eight transistors or eight bits is called a byte. ठीक है, तो जब आपके 8 बिट्स आपके इकट्ठे होते हैं, उन सबको मिला के आप कहते हैं कि ये 8 ट्रांजिस्टर इकट्ठे हो गए, और वी कॉल इट अ बाइट. ठीक है, so this is the information that we store in a computer. uh, तो आपके अब जैसे आपकी जो रैम है उसमें कहते हैं कि इसमें 16 गीगाबाइट्स ऑफ मेमोरी है. इसका मतलब ये है कि आप एक बाइट लें जो कि 8 ट्रांजिस्टर्स का बना हुआ है, और उसमें कि आप गीगाबाइट्स 16 गीगाबाइट्स ले लें. ठीक है, यानी 16 बिलियन बाइट्स ले लें, तो तब आपके पास जो है वो 16 गीगाबाइट्स ऑफ मेमोरी बनती है. ठीक है, बल्कि सिर्फ बिलियन भी नहीं है ये तो, काफ़ी ज़्यादा है उससे, नहीं मैं बिलियन नहीं है. एनीवे, यू गेट द आइडिया. ठीक है, तो आपकी जो हार्ड डिस्क स्पेस है उसमें जब आप कोई वैल्यू स्टोर करते हैं तो वो बताता है कि उसमें कितनी ज़्यादा वैल्यू स्टोर हुई है. अगर आपको याद हो कि पिछली दफ़ा हम फाइल्स का साइज देख रहे थे, तो उसमें लिखा था कि 122 बाइट्स है या 300 बाइट्स है. तो उसका मतलब ये है कि आ, वो इतने बाइट्स इंफॉर्मेशन कर रही थी कि 300 × 8 बिट्स को वो इस्तेमाल कर रही थी. ठीक है, तो इस तरह हमें पता चल जाता है कि कितनी इतनी इसमें इंफॉर्मेशन है एक फाइल के अंदर. नॉर्मली आपकी फाइल्स जो है किलोबाइट्स में होती हैं, या फिर जो पिक्चर्स जो होती हैं, फिर या फिर आगे मेगाबाइट्स के ऊपर होता है. तो आप कैमरे से एक तस्वीर खींचते हो, मेगाबाइट्स के ऊपर वो वैल्यू को स्टोर करता है. तो वो सारा जो काम है वो आपका ये बिट्स एंड बाइट्स पे चल रहा होता है. So now we look at the byte presentation. We start off with only 2 bytes. Okay, you have the first bit and you have the second bit. Okay, आप जब भी आप इसमें बिट्स की बात कर रहे होते हैं तो आप हमेशा यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड. ठीक है, तो आपका जो राइट हैंड साइड पे जो पहला बिट है इज गोइंग टू बी द फर्स्ट बिट. उसके बाद जो बिट आएगा दैट इज गोइंग टू बी द सेकंड बिट. So this is how it is this value is calculated. So suppose uh, now the first bit can be in two states, so it can be 0 or 1, and the second bit can be also be in two states. So in here we have 0 0 and 1 1. Okay, uh, अब ये चीज काम कैसे करती है. ठीक है, तो इसका जरा सा थोड़ा सा ट्रिकी है. अगर आपने पहले नहीं किया हुआ तो शायद आपको थोड़ा सा मसला हो, लेकिन मैं इसको आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ. फर्ज करें कि आपके पास ना इन द बिगनिंग आपके पास सिर्फ एक बिट है, सिंगल बिट है, तो हम सिर्फ फर्स्ट बिट को देख रहे हैं सिर्फ. ठीक है, अब जो फर्स्ट बिट है वो सिर्फ दो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, 0 और 1. ठीक, तो इसका मतलब ये सेकंड बिट का होना या ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्स्ट बिट जो है सिर्फ दो वैल्यू स्टोर कर रहा है. तो जब फर्स्ट बिट 0 स्टोर करेगा तो वैल्यू 0 होगी, जब फर्स्ट बिट 1 स्टोर करेगा तो वैल्यू 1 होगी. ठीक है, अब आप ऐसे करते हैं कि आप कहते हैं कि मेरे पास एक नहीं, मेरे पास दो बिट्स हैं. ठीक है, तो जब दोनों बिट्स 0 होंगे तो वैल्यू 0 होगी. जब दोनों बिट्स में से एक बिट यानी सेकंड बिट 0 है, अब फर्स्ट बिट 1 है, तो कोई फर्क नहीं आया क्योंकि 0 तो काउंट नहीं होता. तो अगेन जो वैल्यू है वो 1 होगी. अब फर्स्ट बिट जो है वो 0 1 होगा, लेकिन इसके बाद जो कॉम्बिनेशन है जो इन दो के साथ बन सकती है वो बन सकती है 1 0. ठीक है, कि फर्स्ट बिट को 0 है लेकिन सेकंड बिट 1 है.
तो ऐसे में 10 की जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगी, ठीक है। और सेकंड बिट को हम 1 रखेंगे और फर्स्ट बिट को जब 1 करेंगे तो 1 1 जो वैल्यू है दैट इज द वैल्यू 3, ठीक। तो इस तरह आपके जो बिट्स की कॉम्बिनेशन से आपकी जो है वैल्यूज चेंज होती हैं। लेट मी सी इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस। ये सबको एक्सप्लेन हो चुका है, मुझे नहीं पता कंप्यूटर का है। यस सर। बाइनरी टू डेनरी का डेसिमल होता है, बाइनरी टू डेसिमल, डेनरी तो कुछ नहीं। डेनरी पहली बार सुन रहा हूँ और कोई कह रहा था ऐसे। सो अच्छा, तो फिर आपने फिर यू हैव डन द 3 बिट्स एज वेल, सो लेट मी सी। यस सर। सर ओके, फार्मूला बदला था। ओके, सो so you guys can do this as well. यस सर। Okay, I'll keep checking so that we Yes, don't sir. miss something. Okay, सही है। तो फिर छोटी सी एक्सरसाइज है, बता सकते हैं क्या बनेगा? Sir, 138. आप now somebody is asking के how will this 137। 137। okay, I'll explain like अभी एक सवाल आ चुका है कि ये कैसे होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि either somebody missed the classes or they did not fully understand that, so I'll Sir, repeat, 137. ठीक है। So I'll show you like how this will happen, okay? uh, So first of all, you have these indices, right? So this is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. इन दोनों को सबको मिलाएंगे तो आपके पास टोटल 8 indices हैं, ठीक है। Start with 0 and with 7. फिर आप क्या करते हैं, आपके बिट्स है उनको आप अलाइन कर देते हैं 2 की पावर्स के साथ। तो दिस इज 2 पावर 0 as it is given from indices, and this is 2 power 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। फिर आप अगेन आप उनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। 2 पावर 0 ये है, 2 पावर 1 से आगे बस ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आप इनको यहाँ पे अलाइन कर देते हैं। फिर आप करते हैं कि अच्छा कि जो आपके पास 1 है सिर्फ आप उनको लेते हैं, उनसे कॉरेस्पॉन्डिंग जो पावर्स हैं आप उनको अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। तो 1 8 एंड 128 आ गया। अब इनको आप आपस में ऐड अप कर दें, 1 8 128, तो आपके पास 137 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो किसी को ये चीज़ समझ में ना आई हो? ठीक है। तो आपको मैंने स्लाइड्स शेयर की हुई हैं, तो जस्ट इन केस किसी को समझ में ना हो दे कैन ऑलवेज रेफर टू द स्लाइड्स, ठीक है। इसमें आप इस तरह करके इसको कर सकते हैं, वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। Okay, so then this is important, then we come to the types of data that is present in a computer. Okay, so in fact in Java, okay, so Java has these data types. So when we talk about bytes, so इसका मतलब ये है कि आप लिखते हैं ना कि बाइट लिख के आप कोई वैल्यू लिखते हैं आगे, जैसे कोई नाम दे देते हैं कि फर्स्ट इनके बाइट कलर देता है। इसका मतलब ये है कि जो कलर है वो एक बाइट स्टोर करेगा। तो ये जो है -128 से पॉजिटिव 127 तक ये वैल्यू स्टोर करता है। शॉर्ट अगर कहेंगे तो शॉर्ट जो एक वेरिएबल है वो 2 बाइट्स का होगा। जब आप इंटीजर लिखते हैं दैट इज 4 बाइट्स। इंटीजर हमने पिछली लैब में आपने यूज किया था, तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू आप ये स्टोर कर सकते थे 2000। फिर लॉन्ग है आपके पास विच इज अगेन एन इंटीजर विद अ वेरी लॉन्ग वैल्यू, सो दैट्स व्हाई इट हैज दैट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ दिस लॉन्ग, ठीक है। इसी तरह हमारे पास फ्लोट है। फ्लोट अगेन इट टेक्स 4 बाइट्स, लेकिन इसमें ये डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करता है।
Or again, we have double, which is very similar to float, but it stores it's 8 bytes, it stores about 15 decimal digits. बूलियन जो है वो 1 बिट स्टोर करता है, यानी कि आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो इससे पता चल जाता है कि बूलियन जो है उसकी कैपेसिटी आपको डिफाइन करेंगे, इट इज ओनली 1 बिट। और करेक्टर जो है 2 बाइट्स को यूज करता है। ठीक है, तो करेक्टर इज एक्चुअली क्या होता है कि जब भी आप कीबोर्ड की नंबर दबाते हैं ना, तो पीछे से कंप्यूटर को सिग्नल जाता है उस नंबर का, तो कंप्यूटर उस नंबर को इंटरप्रेट करता है इनटू इनटू करेक्टर वैल्यूज। ठीक है, तो वो जो करेक्टर वैल्यूज है ये एस की वैल्यूज कहा जाता है उनको। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर करेक्टर और समथिंग। ठीक है, तो ये एस की वैल्यूज कंसिडर किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी जब कोई आप कीबोर्ड बटन दबाते हैं, पीछे जो नंबर गया, सपोज द नंबर वाज 96, तो इन्होंने कह दिया कि 96 मींस ए, 97 मींस बी। ठीक है, तो इन्होंने ये कह दिया। तो कंप्यूटर जब भी कोई आप कुछ टाइप करता है, कंप्यूटर का जो डेटा जाता है वो एक बाइनरी वैल्यू जाती है, बाइनरी वैल्यू को ये कन्वर्ट करता है इनटू डेसिमल वैल्यू, एंड देन इट कन्वर्ट्स दैट इनटू कैरेक्टर। तो आपका कैरेक्टर जो है आपका हमेशा 2 बाइट्स इस्तेमाल करेगा। तो जो आप ए लिखते हैं, ए एक्चुअली 2 बाइट्स की वैल्यू इस्तेमाल करता है। अब now let's into look into the operations. Okay, what operations we can do. So in integers we can do plus, minus, multiply, divide, and this is the remainder. Okay, so percentage basically it is a remainder symbol. So if you write 5%2, it does not mean like we are taking 2% of 5. What it means is that you are going to divide 5 by 2, and the answer you're going to get is the remainder. So when you divide 5 by 2, the remainder is 1. Okay. Uh, in double you can do plus, minus, multiply and divide, but there is no remainder in double. ठीक है, क्योंकि ये floating point values होती हैं, तो इसमें 3.14 है, 2.56, 2.5 है, 6.022 है। ठीक है, तो ये सारी जो हैं ये डेसिमल वैल्यूज हैं, इनमें कोई रिमाइंडर होता नहीं है, तो इसलिए रिमाइंडर आप इसमें इस्तेमाल नहीं करते डबल वैल्यूज में। बूलियन जो है इसमें ये इसको कहते हैं एंड और नॉट। ठीक है, तो ये जो वैल्यू स्टोर करता है ये बताता है एंड से कि आइदर वैल्यू इज ट्रू, आइदर वैल्यू इज फॉल्स, और ठीक है, तो ये इसको बताता है। तो ये अब ये जो है एक्सक्लेमेशन मार्क, ये नॉट का सिंबल है, तो ये अगर कोई वैल्यू ट्रू होगी उससे पहले आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे तो वो उसको वैल्यू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। ये आपको समझ में आ जाएगा वंस वी मूव फॉरवर्ड। ठीक है, कैरेक्टर्स में कोई ऑपरेशंस नहीं होते। आप प्लस को ऑपरेशन कह सकते हैं कि एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर के साथ ज्वाइन करने के लिए आप प्लस को यूज करें तो कॉन्कैटिनेट हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो है ये स्ट्रिंग के अगर कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर में देखिए सिंगल कोटेशन है, तो दैट इज अ कैरेक्टर। स्ट्रिंग में आपके पास डबल कोटेशन है, सो दैट इज अ स्ट्रिंग। ओके, तो कैरेक्टर में सिर्फ एक कैरेक्टर की बात हो रही होती है, स्ट्रिंग में आपके पास मल्टीपल कैरेक्टर्स की बात हो रही होती है, तो इसलिए आप उसके अंदर प्लस का साइन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम कुछ टर्मिनोलॉजीज को देख लेते हैं। ठीक है, कि टर्मिनोलॉजीज आपकी आप बुक पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये टर्मिनोलॉजीज आएंगी। नॉर्मली बात करते हुए या पढ़ाते हुए इस टर्मिनोलॉजीज को ज़्यादा एक्सेस नहीं किया जाता, इनको नहीं बोला जाता। ठीक है, कम बोला जाता है, लेकिन फिर भी इनका पता होना ज़रूरी है। लेट मी चेक। ओके, no questions so far. So first of all, literal the Java code representation of data type value. For example, we use sequences of digits such as 1, 2, 3, 4 or 19 to represent value of type integer. ठीक है, तो आपके पास कोई भी वैल्यू हो वो स्टोर हुई हुई हो तो उसको आप लिटरल कह देते हैं। ठीक है, इट्स अ लिटरल। बाकी जो बेसिक डेटा टाइप है उसमें जैसे इंटीजर की वैल्यू थी 1, 2, 3, 4 हमने स्टोर की हुई है तो एक लिटरल कह देंगे आप इसको। जैसे करेक्टर ABC आपने स्टोर किया तो उसको अगेन लिटरल कह देंगे, तो उसको लिटरल कहा जाता है। ठीक है, ऑपरेटर, ऑपरेटर ये है कि जो आपके लिटरल्स के दरमियान जो ऑपरेशन चल रहा होता है उसको आप ऑपरेटर कहते हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है, सारे ऑपरेटर्स में काम होते हैं। अच्छा, आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर ये है कि लिटरल को अगर आप कोई नाम दे दें, ठीक है, लिटरल क्या है 4, 5, 6, इट्स अ लिटरल। लेकिन आप फर्ज करें कि फर्स्ट करें ईयर, आपका ईयर जो है अभी 2020 है, तो आप उसको अगर नाम दे दो, ईयर को मैं नाम दे सकता हूँ YEAR, ईयर में नाम दे दिया तो ईयर इज इक्वल टू 2020, तो उससे पता चल जाता है कि हम ईयर की बात करें, किस ईयर की बात करें। तो उसका जो आइडेंटिफायर है ईयर का वो 2020 है। इसी तरह हमने मेन फंक्शन लिखा था, मेन फंक्शन का जो आइडेंटिफायर है वो मेन है। हम जब क्लास लिखते हैं तो क्लास में लिखती क्लास माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम, तो उसे माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम वाज द आइडेंटिफायर ऑफ द क्लास। ठीक है, तो आइडेंटिफायर इसको कहते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल,
वेरिएबल ये होता है कि आप कोई वैल्यू, जो लिटरली वैल्यू किसी नाम के अंदर स्टोर करते हैं, उस नाम को वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। अब ये वेरिएबल आइडेंटिफायर जो है वो काफ़ी लोग मिक्सअप कर देते हैं उसके अंदर। असल में जो वेरिएबल होता है वो एक वैल्यू स्टोर करता है और साथ साथ में वेरिएबल ही आइडेंटिफायर होता है, ठीक है। तो जैसे कि ईयर जो था, ईयर में 2020 मैंने स्टोर किया, तो जो 20 ईयर है दैट इज अ वेरिएबल, और उसमें जो वैल्यू स्टोर है 2020 है, ठीक है। और जो ईयर है वो इट इज आल्सो एन आइडेंटिफायर, ठीक है। इट इज आइडेंटिफायर दैट आइडेंटिफाइज अ ईयर। अब जो आइडेंटिफायर है वो आपके फंक्शन का भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन फंक्शन का वेरिएबल नहीं हो सकता। ये नहीं कर सकते कि एक फंक्शन है वो आप एक वेरिएबल में स्टोर कर लें, ठीक। तो ये थोड़ा सा फर्क है, वो वक्त के साथ साथ आपको क्लियर हो जाएगा, अभी क्लियर नहीं हुआ। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि जब आप कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे होते हैं, जैसे कि इसमें आप देखें, मैंने एग्जांपल दिया डबल टोटल, तो टोटल इज द वैल्यू व्हिच इज गोइंग टू बी स्टोर्ड एंड द वैल्यू इज बीइंग स्टोर्ड एज अ डबल, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं जब भी कोई चीज़ें मैं खरीदी हैं उनके जब मैं टोटल करूंगा तो मेरे पास डेसिमल में वैल्यू आएगी, तो वो जो वैल्यू है मैं टोटल के अंदर स्टोर कर लूंगा, ठीक। तो ये हो गया डबल। एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस होते हैं कि जो आप एक्सप्रेशन लिखते हैं, मैथ के एक्सप्रेशंस नहीं लिखते थे, तो ये इधर जो एक्सप्रेशन है वो है 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 3, ठीक है। तो जब भी आप इस तरह का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो इसको एक्सप्रेशन कहा जाता है, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम कोड एग्जांपल्स के पास शिफ्ट करेंगे और देखेंगे जो मैं मुख्तलिफ कोड एग्जांपल्स हैं कैसे बिहेव करती हैं, ठीक। तो बिफोर वी डू दैट लेट मी चेक द चैट है। तो अभी तक सबको सब चीजें क्लियर हैं, कोई कंफ्यूजन बिफोर वी गो इनटू द कोड रिव्यू? No, sir. No, sir. No, sir. ओके गुड, No confusion. ओके गुड, दैट्स गुड। तो मैं इससे बाहर निकलूं, ये कैसे खत्म, हाँ खत्म हो गया, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मूव टू एग्जांपल 1, उसके साथ मैं अपना कोड खोल के रखता हूँ, ठीक। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि मैं इस कोड को ना थोड़ा सा ट्राई करके देख चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं पाथ सेट कर लिया था कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। उसके बाद मैंने जावा कंपाइल किया, फिर मैंने एग्जांपल को रन किया, ठीक है। तो मेरे पास आउटपुट 120 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम इस कोड को देखेंगे कि ये कोड कैसे काम करता है, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिक्लेयर्ड द name of the program, which was example1. It should be the same as the name of the file. So almost every one of you knows that. Then I declared the public static main function, void main function, and in this function I wrote this code, ठीक है। अब इस कोड में हो क्या रहा है, आई एम डिक्लेयरिंग, सो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट भी हमने पढ़ी थी ना, तो आई एम डिक्लेयरिंग द वेरिएबल्स ओवर हियर, सो दे आर 3 वेरिएबल्स व्हिच आई एम डिक्लेयरिंग। अच्छा, प्रोग्रामिंग करते हुए एक अच्छी आदत ये होती है कि आप हमेशा अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज करें, ठीक है। तो जब भी आप किसी वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज करते हैं, इसको इनिशियलाइजेशन, ये बहुत आम सी प्रैक्टिस है कि आप ना अपने वेरिएबल को सबसे पहले 0 से इनिशियलाइज करें। जरूरी नहीं है, लेकिन फर्स्ट के जैसे कि सी था ना, हम ए को यहाँ पे डायरेक्टली 20 लिख सकते थे, ठीक है, और बी को हम डायरेक्टली 100 लिख सकते थे। तो आ, तो मुझे ये काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको यूं भी लिखता हूं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, सिर्फ यह है कि लाइंस ऑफ कोड जरा ज्यादा आ रही है। लेकिन जो फर्क है वो सी में है, क्योंकि सी की वैल्यू हमें सिर्फ तब मिलती है कि जब हमारे पास ए और बी होंगे। अब इसमें देखेंगे ए की वैल्यू हमने असाइन किया है, 20 असाइन कर दिया, बी को वैल्यू हमने 100 असाइन कर दिया, और सी जो है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट्स अ सम ऑफ 20 एंड 100। इनका जो तो तब तक इसकी जो वैल्यू है ना, वो आप उसे कह सकते हैं इसके अंदर गार्बेज वैल्यू है। हम चाहते हैं कि इसके अंदर गार्बेज वैल्यू ना हो, इस वजह से हम इसको 0 डिक्लेयर कर देते हैं। गार्बेज वैल्यू ये होती है कि जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो सारे जो आपके सर्किट्स हैं उसमें से बिजली गुजरती है, ठीक है। तो कुछ कुछ ट्रांजिस्टर्स को ऑन कर देती है, कुछ ट्रांजिस्टर्स को ऑफ कर देती है, ठीक है। तो हमेशा ये होता है जब भी कंप्यूटर आपका स्टार्ट होता है। तो
हम ये तो हम कहते हैं इंटीजर सी। जब भी हम कहते हैं इंटीजर सी तो कंप्यूटर क्या करता है कि आपकी जो मेमोरी है ना उसमें एक एक लोकेशन को एलोकेट कर देता है और कहता है कि मेरे पास जो भी वैल्यू आएगी मैं सी के अंदर इधर स्टोर कर दूंगा। ठीक। तो वो जो मेमोरी लोकेशन एलोकेट करता है तो उसके अंदर जितनी भी मेमोरी है ना वो सारी जो है ना उसमें चूंकि बिजली गुजरी थी तो उसमें कुछ कुछ वैल्यूज 1 हुई है, कुछ वैल्यूज 0 हुई है। तो इट कैन स्टोर एनी वैल्यू। ठीक है। तो इस वजह से आपके पास चांस हो सकता है कि आप ना जब सी को इस्तेमाल करें तो आप कोई गड़बड़ कर दें। तो अच्छा तरीका ये होता है कि whenever you start a program, you just when you declare a variable just set it as 0। ठीक है। स्पेशली वो वेरिएबल्स जिन्होंने आगे चल के ना आपको जिसमें आपने वैल्यू स्टोर करनी है, जैसे इस केस में सी है। सी को मुझे 0 करना बहुत जरूरी है। अब हो क्या सकता है, मसला क्या हो सकता है? मसला ये हो सकता है कि मैं लिख दूं कि सिस्टम द आउटपुट इज सी इनटू सी इनटू 10। ठीक है। फर्स्ट करें कि मैं ये जो लाइन थी ना, ये लाइन में मैंने कोई गलती की हुई है। ठीक है। और सी की वैल्यू असाइन नहीं हुई। अगर सी की वैल्यू असाइन नहीं हुई तो मैं लिखूंगा आउटपुट इज सी इंटू 10। सी की वैल्यू चूंकि 0 है तो 0 इंटू 10 इट विल बी 0। तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरे पास 0 वैल्यू आई है। इसका मतलब ये है कि जो मेरा एक्सप्रेशन था वो गलत था, क्योंकि उससे सी के अंदर वैल्यू दाखिल नहीं हुई है। तो इससे अपना एरर चेक करने में, एरर पकड़ने में आसानी होती है। लेकिन सी के अंदर कोई गार्बेज वैल्यू होगी और ये एक्सप्रेशन गलत होगा ना तो ये मुझे कोई नंबर यहाँ पे दे देगा। अगर ये कोई नंबर दे दिया तो मैं समझूंगा ये कि ये जो सम किया था उसका ये रिजल्ट दे रहा है। ठीक है। विच विल नॉट बी द केस। ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो वेरिएबल आप बाद में इस्तेमाल करेंगे तो उसको आप डिक्लेयर करते वक्त उसी को इनिशियलाइज कर दें। ठीक। अब यही जो कोड है इसको हम यू रन करते हैं। अब यहाँ को रन करके दिखाता हूँ। तो इट्स 20 प्लस 100, सो द आंसर इज गोइंग टू बी 120। तो मैं लिखता हूँ पहले ही लिखा हुआ है जावा सी एग्जाम्पल 01। इसे कंपाइल कर दिया। मैं लिखता हूँ जावा ई एक्स एग्जाम्पल 1। एंटर दबाऊंगा, 120 इससे मुझे आउटपुट दे दिया। ठीक। अब इसी कोड को मैं चेंज करता हूँ। इंट ए को मैं 20 कर देता हूँ, इंट बी को मैं 100 कर देता हूँ, सी को मैं 0 छोड़ देता हूँ। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे इन दो लाइनों की जरूरत नहीं है। सही। तो अब ये कह रहा है कि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और इसको मैं सेव कर दूं, कंट्रोल एस, अगेन वी कंपाइल इट एंड अगेन वी रन इट। तो अगेन इससे मुझे आउटपुट जो है 120 दे दिया। तो अब देखिए मैंने दो लाइनें कम कर दी हैं और काम लाइनें कम करने के बाद भी मेरे पास जो आउटपुट है वो सेम आ रहा है। ठीक। अच्छा, अब हो सकता है कि ये सी जो है ना हम कहीं और इस्तेमाल करें। ठीक है। अगर हमने सी को कहीं और इस्तेमाल नहीं करना, इसका मतलब ये है कि हमें सी की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको मज़ीद छोटा कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख दूँ ए प्लस बी। अच्छा, मैं इसको ब्रैकेट्स में इसलिए किया है क्योंकि आप देखें यहाँ पे स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग स्टेटमेंट है, प्लस आपने किया। तो अगर मैं इसको ब्रैकेट्स में नहीं करूँगा तो ये समझेगा कि मैं इसमें ए वेरिएबल मैं जो ना ऐड कर रहा हूँ, तो ये कंफ्यूज हो जाएगा। तो मैं चाह ये रहा हूँ कि पहले ये एडिशन करें और एडिशन करने के बाद ये आउटपुट के अंदर इसको ऐड करें। तो इस कोड को इतना छोटा करने के बाद अगेन आई सेव इट, अगेन आई रन इट, जावा सी एग्जाम्पल 01 और जावा एग्जाम्पल, अगेन आई गेट 120 आउटपुट। ठीक है। फर्क ये है कि यहाँ पे अब मैंने सी इस्तेमाल नहीं किया हुआ। ठीक है। तो अब ये मुझे आउटपुट दे रहा है, लेकिन अगर मैं इस सी की वैल्यू को दोबारा कहीं इस्तेमाल करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता, बिकॉज आई हैवंट स्टोर्ड दिस वैल्यू एनीवेयर। ठीक है। चैट क्या सवालात क्या है वो देख लूँ। ओके, जहांजेब ने कहा नो, फिर सवाल नहीं किया। जहांजेब आप कोई सवाल आप लिख दें। Okay, sir, when the electricity pass through all the transistors, then how can computer store value 0 in some transistors? क्योंकि जब ये इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, कंप्यूटर ऑन होता है, तो इट्स अ सर्ज। ठीक है। तो सर्ज में कभी जो वैल्यू है किसी में 0 आ जाएगी, किसी में 1 आ जाएगी। ठीक है। वो एक वोल्टेज वैल्यू होती है। ठीक है। बिजली सब में ही जाती है, लेकिन वो एक वोल्टेज वैल्यू होती है। किसी में वोल्टेज वैल्यू ज्यादा है, किसी में वोल्टेज वैल्यू कम है। तो इस वजह से जो कंप्यूटर रीसेट हो रहा होता है तो वो इन वैल्यूज को में से वो कोई भी वैल्यूज में असाइन कर सकता है। गार्बेज वैल्यू होती है कि एनी वैल्यू
जो विच मेक्स नो सेंस, ठीक है। तो आपको कंप्यूटर जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू है। तो क्योंकि कंप्यूटर कहता है कि ये मेमोरी लोकेशन है, इसमें बस अब तुम वैल्यू स्टोर करना शुरू कर दो। तो उस मेमोरी लोकेशन को जब असाइन करता है कोई नाम, ठीक है, तो उसमें कोई भी वैल्यू पड़ी हो सकती है, ठीक है। आप इसको इस तरह देख लें कि फर्ज करें कि आपके पास एक बहुत छोटा कंप्यूटर है जिसमें 2 बाइट्स हैं, ठीक है। तो पहला जो बाइट है उसमें आपने वैल्यू 10 स्टोर किया, दूसरा जो बाइट है उसमें आपने वैल्यू 20 स्टोर की हुई है, ठीक। इतने में मैं कहता हूँ कि एक और बाइट डिक्लेयर कर दो, नहीं, एक और वेरिएबल डिक्लेयर करो। उसको वेरिएबल का जो उस वेरिएबल को मैं कहूँगा नेम, ठीक है। तो मैं जब लिखूंगा कि स्ट्रिंग नेम, ठीक है, तो कंप्यूटर क्या होगा, कंप्यूटर देखेगा अच्छा मेरे पास कौन कौन सी वैल्यूज मौजूद है। तो वो देखेगा कि मेरे पास सिर्फ 2 बाइट्स है, और वो 2 बाइट्स को ना वो नेम कहना शुरू कर देगा। जब उसने 2 बाइट्स को नेम कहना शुरू कर दिया तो उनमें तो पहले से वैल्यू क्या है, 10 और 20 वैल्यू है। तो 10 और 10 20 तो किसी का नाम नहीं होता, तो 10 20 है एज अ गार्बेज वैल्यू, ठीक है। तो फिर मुझे नेम को स्टोर करने के लिए उसमें मुझे नेम लिखना पड़ेगा। जब मैं नेम लिखूंगा तो फिर वो उसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी, अदरवाइज इट हैज गार्बेज वैल्यू बिफोर दैट। सर वेरिएबल्स और इंटीजर हैं बट फंक्शन इज स्ट्रिंग। अच्छा, इसको मैं बताता हूँ। अच्छा, अफान ने जवाब ऐसे दे दिया, नहीं फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दूँ। कैरेक्टर की मैं इसका ही बताता हूँ, 2 बाइट्स हैं, यही बताता हूँ अभी। ओके, ये जो फंक्शन में स्ट्रिंग लिखा हुआ है ये एक पैरामीटर है, ठीक है। एक पैरामीटर को मैंने पिछली दफा एक्सप्लेन किया था कि एक हम जो फंक्शन है यहाँ पे पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है। तो जो भी आप लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखा हुआ एग्जांपल 1 2, तो ये एज पैरामीटर्स के ना एज स्ट्रिंग वैल्यूज आएंगे, ठीक है। तो फंक्शन जो है ये स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है ना। फंक्शन वॉइड है, फंक्शन मेन है। तो जो मेन फंक्शन है ये अगर ये कोई वैल्यू रिटर्न करेगा तो वो वॉइड वैल्यू रिटर्न करेगा, विच मींस इट विल रिटर्न नथिंग। और ये जो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा तो ये स्ट्रिंग वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। और स्ट्रिंग वैल्यू अगर मैं इससे कहूँ तो वो स्ट्रिंग जीरो, सॉरी आर्ग्यूमेंट्स 0, आर्ग्यूमेंट्स 1, आर्ग्यूमेंट्स 2, उसके अंदर वैल्यू चली जाएगी। ये पिछले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर आपने वो मिस किया है तो आप उस लेक्चर को दोबारा देख लें। सर कैरेक्टर की सी लैंग्वेज में 1 बाइट वैल्यू होती है एंड इन जावा इट हैज 2 बाइट्स। वाई? क्योंकि विद टाइम उन्होंने एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स ऐड करना शुरू कर दिया। सी जो एक पुरानी लैंग्वेज है, जब सी डिफाइन हो रही थी तो उस वक्त जो कैरेक्टर की जो लेंथ थी ना वो छोटी होती थी, ठीक है। कि आपके 256 के अंदर ही सारे कैरेक्टर्स डिफाइन हो जाते थे, ठीक है। तो आपके 256 एक बाइट के अंदर सारे कैरेक्टर डिफाइन हो जाते थे। लेकिन जब जावा आई तो उसमें ज़्यादा फॉन्ट्स आई, फॉन्ट के साथ और ज़्यादा कैरेक्टर्स आए, तो उनका पता चला कि ये एक बाइट के अंदर वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, तो करेक्टर को बाय डिफॉल्ट हम 2 बाइट्स का रखेंगे ताकि हर किस्म का करेक्टर हम उसमें स्टोर कर सकें। इस वजह से इसकी वैल्यू 2 बाइट्स है। देखिए, आप लिख रहे हैं मोहम्मद अली पूछेंगे लेकिन पैरामीटर्स तो इंटीजर डेटा टाइप के हैं नहीं। पैरामीटर जब भी आप पास करेंगे ना बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग वैल्यू के होंगे, स्ट्रिंग टाइप के होंगे, ठीक है। तो अभी हमने इसमें पास ही नहीं किए, इसके इस फंक्शन के अंदर हमने कोई वेरिएबल्स पास नहीं किए। तो जो भी हम वेरिएबल्स पास करेंगे तो बेशक आप उसको 1 2 3 4 लिख दें, वो होगा स्ट्रिंग ही, ठीक। उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू एन इंटीजर। और और अगर आपको अभी तक ये बात समझ में नहीं आई तो इसका मेरे ख्याल में मेन रीजन ये है कि आपने पिछली लैब नहीं की, ठीक है। लैब में स्पेसिफिकली मैंने यही काम कराया था, और अगर लैब नहीं की तो उस लैब को कर लें। Okay, so we then move forward. I I open the next. This is week 2. We go to lectures. Week 2, lecture 1. We go to code and we open example 2.java. ठीक है। Okay. अब देखें, आप लोगों ने okay, how many of you guys have done FSC? Me, sir.
ठीक है। तो एफएससी के जब हम फिजिक्स पढ़ा करते, बल्कि तो मैट्रिक की फिजिक्स है खैर, एनीवे जब हम एफएससी की फिजिक्स वगैरह पढ़ा करते थे तो खैर मैंने भी एफएससी की है, अगर एफएससी नहीं भी की तब भी आपको ये पता होगा, ए लेवल्स ओ लेवल्स वाला पता होगा। लेकिन तो इसमें इस तरह के सवाल बहुत होते थे फिजिक्स में एटलीस्ट। ठीक। तो जी सर। तो हम इसको देखते हैं कि ये फिजिक्स के क्या सवाल है कि question: a car is moving with an initial velocity of 100 meter per second. It accelerates for 10 seconds with an acceleration of 2 meter per second square. What will be its final velocity? ठीक है। ऑब्वियसली कि ये न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, हम उसको इस्तेमाल करेंगे। तो अब बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन हम उसी तरह लिखते हैं कि देखिए इसमें कोई डेसिमल वैल्यूज नहीं है। ठीक है, डेसिमल वैल्यूज नहीं है तो हम सिंपली इंटीजर में चीजें लिख सकते हैं। अगर डेसिमल वैल्यू होती फॉर एग्जाम्पल 100.2 होती तो हम फिर इनिशियल वेलोसिटी को एज अ डबल स्टोर करते हैं, ठीक है, या फ्लोट स्टोर करते हैं। लेकिन अगर चूंकि हमारे पास जो है वैल्यूज जो है वो उसमें है वैल्यूज होल वैल्यूज है और कहीं पे डिवीजन नहीं हो रहा, तो इस वजह से हमें हम पूरा का पूरा काम जो इंटीजर से कर सकते हैं। अब इधर क्या है, इधर हमने उसी तरह लिखा इंटीजर वी आई। ठीक है। अब अब देखें इसमें मैंने इक्वल टू जीरो नहीं किया हुआ, मुझे करना चाहिए था, मैं नहीं किया हुआ। ठीक है। तो आप इसको इंटीजर वी आई करें, फिर इंटीजर ए एक्सेलरेशन किया आपने, इंटीजर टी आपने टाइम किया। ठीक है। हमारे पास गिवन है टाइम भी, टाइम हमारे पास 10 सेकंड्स है, एक्सेलरेशन हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने ये एक्सप्रेशन लिखा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए इंटू टी। ठीक है, हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन है हमने उसको यूज कर लिया और सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन उसने हमें वी एफ को कर दिया। तो इसमें वी आई आपके पास 100 है, ए इंटू टी 2 इंटू 20, 2 इंटू 10 आपके पास 20 आएगा, तो 100 प्लस 20 इज 120। अगेन आपके पास वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं इधर। ठीक है, तो अगेन वी गो विद जावा सी एग्जांपल 2 और ये कंपाइल हो गया और फिर जावा एग्जांपल। ठीक है, हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो अगेन इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमने डिफाइन की थी। अब इसको हम अगर करना चाहें तो इसको हम वो कर सकते हैं कि इसको चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि मैं इनको यहाँ पे इन वेरिएबल्स को ख़त्म कर दूँ और यहाँ पे देखें वेरिएबल्स ख़त्म किया तो इसका कलर चेंज हो गया। तो आईडी इसका हेल्प करती है। नॉर्मली आप नोटपैड पे करेंगे तो आपको ये नहीं बताएगा। इंट वी आई कर दिया इसको, इंट ए कर दिया इसको, इंट टी कर दिया। और वी एफ हमें मालूम करनी थी तो इसको हम इक्वल टू 0 कर देते। तो आप इसको यूं भी लिख सकते थे। ठीक है, डजंट मैटर, इस तरह भी सही काम करेगा। ठीक, इसको करके देख लेते हैं। इसको सेव किया, वी रन दिस, कंपाइल हो गया और हमें ये चलाया तो अगेन 120 इसका आंसर दे दिया। ठीक है, तो इस तरह के बेसिक जो आगे पता वेरिएबल्स हो तो वेरिएबल्स को यूज करके और एक्सप्रेशंस को यूज करके आप बेसिक आउटपुट आप ले सकते हैं एग्जाम। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल है। So let me see if there are any questions. सर वो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी जो है वो हम लोग क्यों नहीं एंटर कर सकते, प्री डिफाइंड क्यों है? क्या इनिशियल वेलोसिटी? सर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल जो है वो हम लोग यूजर से क्यों नहीं ले रहे और फिर हम यूजर से इसलिए ले रहे क्योंकि जो क्वेश्चन है उसमें पहले से वो डिफाइंड है। अगर वो डिफाइंड नहीं होगी तो ऑब्वियसली आप जो है कमांड लाइन आर्गुमेंट से लेंगे। ठीक है ना, तो इधर आप ठीक है ना, यानी कि आप एक मैराथन में आ गए और वो मैराथन जो है वो है कि आपने जो है सदर से भाग के आपने गुलशन इकबाल तक पहुंचना है। ठीक है, ये मैराथन है। तो अब आप कहें कि नहीं मैं तो सदर से भाग के मैं तो डिफेंस तक पहुंचूंगा। ठीक है, तो आप मेहनत बहुत करेंगे, डिफेंस तक पहुंच भी जाएंगे, लेकिन आपको उसका जो आंसर चाहिए वो नहीं मिल रहा ना। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे आप गुलशन इकबाल में पहुंचेंगे, आप पहुंच गए वहां पे डिफेंस में। ठीक है, तो इसलिए जो जो आपका क्वेश्चन है हम उसको एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करना है। अब इस क्वेश्चन में कहीं से ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा फंक्शन बनाएं जो कि जो कि
कोई भी यूजर इनपुट को ना इस्तेमाल कर ले, ठीक है। मिर्जा मुसाब जो है वो कह रहे हैं पिछली बार हमने पास्ट टेंस यूज किया था। पास्ट टेंस हमने इसलिए यूज किया था बिकॉज वी वर गेटिंग, वी डिड नॉट नो व्हाट द यूजर इज गोइंग टू पास, ठीक है। तो यूजर है वो कुछ भी पास कर सकता है। इधर हमारे पास जो वैल्यूज है प्री डिफाइंड है कि इसकी इतनी स्पीड है, इतनी टाइम है, इतना वो है। जो 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 वाहिद वैल्यू डिफाइंड नहीं है वो वीएफ है, और वीएफ हम इन तीन वैल्यू से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो इधर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से पार्स इंट इस्तेमाल नहीं किया। पार्स इंट जो है वो आपकी यहाँ से जो आपकी जो स्ट्रिंग वैल्यूज है उनको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसलिए आपने पार्स इंट इस्तेमाल नहीं किया। अभी हम आगे एग्जांपल्स पे जाएंगे तो पार्स इंट भी इस्तेमाल होगा, तो आप यू शुडंट वरी अबाउट दैट। आप इंट आर्ग्स लिख सकते हैं, लेकिन फिर एवरीथिंग विल बी एक्सेप्टेड एज एन इंटीजर। तो प्रॉब्लम क्या होती है, फिर क्या होगा कि आप फ्लोट वैल्यू पास करेंगे, तो फिर आप फंक्शन को जाके फिर से चेंज करेंगे कि ओहो अब तो मैंने फ्लोट वैल्यू पास कर दी है, तो मुझे इसको इंट आर्ग्स की जगह मुझे इसको फ्लोट आर्ग्स कर देना चाहिए, ठीक है। फिर अगली बार आपने बूलियन पास कर दी, फिर कहेंगे ओहो अब मैंने यहाँ पे मुझे तो अब बूलियन वैल्यू पास कर दी है, तो मुझे इसको अब यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पे फ्लोट की जगह मुझे बूलियन आर्ग्स कर देना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप कोई भी आप वैल्यू पास करेंगे तो यहाँ से आपको वो चीज़ें चेंज करना पड़ेंगी। तो सबसे सेफेस्ट बेट क्या होती है कि आप इसको एज अ स्ट्रिंग रखें, तो उसको फिर आपको इधर चेंजेस नहीं करनी पड़ती, ठीक है। आपको वैसे चेंजेस आप कर लेते हैं। तो अब जिस तरह क्वेश्चन था कि हमने जो है कि हमने स्ट्रिंग पार्स इंट इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, हम फर्स्ट का एग्जांपल लेते हैं कि जो वी आई है 100, ठीक है, ये हमें यूजर देगा, ठीक है। तो ऐसे में हम कर देंगे इसको इंटीजर डॉट पार्स इंट, और यहाँ पे आर्ग्स 0 कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं पता क्या है। यहाँ पे वैसे तो क्वेश्चन में लिखी हुई 100, लेकिन चूंकि अब क्वेश्चन हो रहा था तो मैंने कहा कि चलो अब इसको करके दिखा देते हैं। अब ऐसे केस में इनिशियल वेलोसिटी हमें कुछ नहीं पता क्या है। इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो ये जो आंसर है 20 हो जाएगा, 1 होगी 21 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये चेंज हो जाएगा। तो अब जो इनिशियल वेलोसिटी वो यूजर देगा, बाकी कैलकुलेशन एज इट इज जैसे पहले थी वैसे ही हो जाएंगी। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। इसमें आके मैं कर देता हूँ जावा सी एग्जाम्पल 2, और फिर एग्जाम्पल 2 मैं ये लिखा जावा एग्जाम्पल 2, अब मुझे इसको इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें 100 थी तो 100 की जगह मैं 500 कर देता हूँ। हाँ, गलती यही हो गई, गलती हो जाती है। ये क्यों हो गया, कहाँ गलती कर दी मैंने, या कंपाइल नहीं हुआ। चलो सी, और सेव नहीं किया ना, देखिए मैंने भी गलती कर दी। यहाँ पे मैंने लिखा कोड, मैंने इसको सेव ही नहीं किया, तभी इसने मुझे कंफ्यूज कर दिया, ठीक है। तो ये अब देखिए मैंने भी गलती की है, तो ये लोग गलती आप भी करेंगे, ठीक है। तो इसका ख्याल रखिएगा। एग्जाम्पल 2 पा किया और अब मैं 500 से, फिर भी गलत दे रहा है। अब क्यों गलत दे रहा है। ओह ठीक है, समझ गया मैं। ये किसने ऑन किया और सबको म्यूट करना पड़ेगा। अच्छा इधर से करना, पार्टिसिपेंट्स म्यूट कहाँ से है इसकी मीटिंग, यार किसने अपने आप को म्यूट नहीं किया हुआ, नींद आ रहा हूँ। किसने अपने आप को म्यूट नहीं किया हुआ।
कहाँ से होता है सेटिंग्स? मोहम्मद आरम ने नहीं किया हुआ है म्यूट अपने आप को। मैं भूल गया कहाँ से ये सेटिंग सेट होती है इसकी, तंग करके रखा हुआ है। अच्छा अच्छा मैं बताता हूँ गलती क्या हुई है। गलती ये हुई है कि ये सारा जो फाइल जो मैंने खोली हुई है ना, ये मैंने जावा एग्जांपल 1 नहीं, फाइल भी चाहिए नहीं है, जावा एग्जांपल 2 खोली है मैंने। सर आपने वो A+B आपकी सेकंड। हाँ तो ये नहीं, ये तो A+B है ना, मुझे एग्जांपल 1 खोलनी थी। फाइल एक्सप्लोरर कोड जावा एग्जांपल, हाँ एग्जाम्पल 2 मैंने इधर से खोली हुई है, ठीक है। जो मैं खोली हुई थी वो इधर से खोली हुई थी, और मैं कंपाइल किसी और जगह से कर रहा था। तो जो एग्जाम्पल जो थी वो मैंने इसमें रखी हुई है जावा के अंदर, एग्जाम्पल 2, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल 2 डॉट जावा, लेकिन ये तो इधर से खोली हुई है। हाँ अब देखिए जो मैं चेंजेस की थी ना वो इधर आई नहीं है, ठीक है। वो इसलिए नहीं आई हुई कि वो मैंने फाइल जो खोली थी कहीं और से खोली थी, उधर से कंपाइल, और कंपाइल मैं इधर कर रहा था, समझ में नहीं आता कि क्यों प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अब सही जगह से मैंने फाइल खोली है। तो इसमें अब मैं करूँगा कि इसमें करना था इंटीजर डॉट पार्स इंट, और इधर मैंने आर्ग्स 0 ये पास कर दिया, और वी आई इधर से हो गया, वी टी इधर से हो गया। तो दिस सीम्स फाइन, तो इसको सेव कर देते हैं, और अब इसमें कंपाइल करते हैं। जावा सी कंपाइल हो गई, इसके साथ करेंगे, देखिए 520 अब आ गया, ठीक है। वो मैंने फाइल कोई और, वो मैंने फाइल जो थी नोट्स के अंदर से खोली हुई थी, कंपाइल में ये वाली फाइल कर रहा था, तो वो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। तो ये सही जगह से फाइल खोल ली है, ठीक है। तो इसमें मैंने अब चेंजेस की, तो जो मैंने इनपुट था वो मैंने उससे दिया, क्या कहते हैं, यूजर से ले लिया। तो ऐसे में जो मुझे फाइनल वेलोसिटी है मुझे उसके हिसाब से मिल गई है, ठीक है। तो आप इस तरह इसको चेंजेस करके अपने जो कोड है उसको सही कर सकते हैं, कि उससे उसको आप यूजर इनपुट से भी चला सकते हैं, ठीक। अब हम आ जाते हैं इसको से निकल के, हम आ जाते हैं अगले पे। इसमें एग्जांपल 3 पे आप आते हैं, ठीक। यूजिंग वेरिएबल्स इन प्रिंट एलन स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि हमने एग्जांपल 3 है, हमने कहा कि इंटीजर वैल्यू इज 100, हमने वो स्टोर कर ली, और हमने स्ट्रिंग वैल्यू डिफाइन किया, स्ट्रिंग वैल्यू, इसमें हमने जॉन स्टोर कर लिया। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, यहाँ पे हमें स्ट्रिंग वैल्यू, तो जो स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर वैल्यू थी जॉन, ठीक है, वो इधर आ जाएगी। उसके मैं ऐड कर रहा हूँ स्कोर्ड, और फिर मैं लिख रहा हूँ इंट वैल्यू विच इज 100, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। आउटपुट लाइन को देख लें, तो आउटपुट लाइन में 520 आया तो हुआ है, या आपको नजर नहीं आ रही आउटपुट लाइन? अच्छा आप उसकी आउटपुट लाइन की बात कर रहे थे, नहीं। वो प्रॉब्लम ये थी कि मैंने फाइल में बस एक जैसी दो फाइल्स थी, तो जो फाइल मैं दिखा रहा था वो फाइल मैं कंपाइल नहीं कर रहा था, ठीक है। तो फाइल वो सेपरेट, तो फिर मैंने प्रॉपर जगह से फाइल खोली है, वहां से उसको कंपाइल किया, तो काम कर गया। अच्छा इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, एग्जांपल में ये हो रहा है कि अ, हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू है 100, हमने स्टोर कर ली एक वेरिएबल में, और हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू है जिसको हमने जॉन लिखा था वो हमने स्टोर कर लिया, ठीक। अब हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू, तो मैं यहाँ पे जॉन नहीं लिख रहा, मैं स्ट्रिंग वैल्यू लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू जब भी वो प्रिंट करेगा क्या करेगा, यहाँ के स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो उसको लिख देगा, प्लस स्कोर्ड को अटैच करेगा उसे, प्लस इंटीजर वैल्यू, तो जो इंटीजर वैल्यू है उसको यहाँ पे लिख देगा। तो इसको जब हम कंपाइल करते हैं तो देखें ये भी सही काम करेगा। एग्जाम्पल 3 डॉट जावा, और जावा एग्जाम्पल तो लिखा है जॉन स्कोर्ड 100, ठीक है। तो इस वजह से आप जब प्रिंट एलन है उसके अंदर आप प्रिंट जो क्या करता है, स्ट्रिंग वैल्यू को ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो वैल्यू है वो लेकर आ जाता है, और इंट वैल्यू के अंदर जो वैल्यू उसको ऑटोमेटिकली ले आता है, ठीक है। और इसको आपस में स्ट्रिंग के साथ ज्वाइन कर देते हैं। तो इस तरह वेरिएबल्स को यूज करके आप अपना आउटपुट भी चेंज कर सकते हैं। ओके कोई क्वेश्चन? ओके देयर वाज अ वन मैसेज, ओके। सो
So we have done 3 examples. 2 more examples are left, are remaining. So we'll look into those as well. So example 4. Okay. So in this example, we convert a string to integer and integer to back to string. ठीक है, तो ये हम इसके अंदर कर रहे हैं, इसके अंदर मैं CLS कर रहा हूँ, CLS, ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर स्क्रीन, CLS stands for clear screen, क्लियर हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले अगर हम देखें तो हम एक स्ट्रिंग वैल्यू डिफाइन किया which is of type string, so now this value is 120, ठीक है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है, it is not numerical value, और अब मैं कर रहा हूँ कि integer int value which is 80 प्लस integer और parse string value, तो इस 120 को परसेंट जो है ये स्ट्रिंग वैल्यू से इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करा, तो 80 प्लस 120 हमारे पास 200 हो जाएगा, ठीक। देन वी राइट जॉन्स टोटल स्कोर इज, और यहाँ पे इंट वैल्यू है तो इंट वैल्यू यहाँ पे 200 स्टोर हुआ था, यहाँ पे ये 200 लिखेगा। अब मैं करता हूँ इसके बाद इंट स्कोर मैं 50 लिख देता हूँ और मैं लिखता हूँ शर्ट नंबर इज इक्वल टू इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग स्कोर। अब देखें, अब ये इंटीजर का हमने पहले पार्सेंट किया था ना, पार्सेंट यूज किया था, अब इसका एक और फंक्शन होता है, उसका नाम होता है टू स्ट्रिंग। तो जो भी आप इसके अंदर इंटीजर वैल्यू पास करेंगे ये उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो ये कह रहा है कि ये स्ट्रिंग है शर्ट नंबर, और ये कह रहा है कि इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, तो यहाँ पे स्कोर की वैल्यू 50 प्लस ए, तो ये 50 को इंटीजर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, विल बी 50 इन स्ट्रिंग, और उसमें ए ऐड कर देगा, तो जो शर्ट नंबर है वो 50 ए बना देगा। अब हम करें जॉन शर्ट नंबर इज 50 ए, ठीक है, तो यहाँ पे शर्ट नंबर लिख दिया। इसको अब कंपाइल करके देखते हैं। जावा सी एग्जांपल 4 और जावा एग्जांपल, ठीक है। तो हमारे पास पहले स्ट्रिंग वैल्यू थी, उसको हमने पार्स इंट यूज करके उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया, इट बिकेम 120 प्लस 80, हमारे पास 200 आ गया। फिर हमारे पास स्कोर था, उसको हमने स्कोर को हमने इंटीजर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, तो 50 प्लस ए, तो 50 ए बन गया पूरे का पूरा स्ट्रिंग, उसको हमने शर्ट नंबर में स्टोर कर दिया, हमने कहा कि जॉन शर्ट नंबर इज 50 है, ठीक है। तो ये इस तरह जो है वो आप एक पूरे का पूरा स्ट्रिंग आप बना सकते हैं बाय कन्वर्टिंग इंटीजर टू स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बैक टू इंटीजर। सो इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चन? No, sir. सिंपल इनफ, ठीक है। अब हम आखिरी अगर आप लोग थक गए हैं तो सॉरी अबाउट दैट, लेकिन इससे गुजरना पड़ता है, देयर इज नो वे आउट ऑफ इट। अब आखिरी हम एग्जांपल 5 पे आए थे, ठीक है, और इसमें आ जाए, ठीक। तो ये काफी सिंपल सा है, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। अगेन हमारे पास इन एग्जांपल 5 वी हैव टू नंबर्स, नंबर 1 नंबर 2, so it's 10 and 3, ठीक। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि रिजल्ट ऑफ एडिंग num1 प्लस num2 इज num1 प्लस num2, ठीक। ज्यादा अच्छा होता है कि हम इसको यूं लिखते हैं, इट्स it solves the confusion. Similarly we should have written it this way. ये अभी तो मैं सही आंसर, जब मैंने ट्राई किया था तब तो ये सही आंसर दे रहा था, लेकिन इट कैन कॉज प्रॉब्लम्स, तो हमेशा जो एक्सप्रेशन है ना उसको आप एक ब्रैकेट्स के अंदर कर दें, तो इट विल नेवर कॉज प्रॉब्लम, ठीक। तो भाई इसका ख्याल रखिएगा। होता ही है ना, प्रेफरेंस की बात होती है, मल्टीप्लिकेशन हमेशा पहले होगी, डिवीजन हमेशा पहले होगी, उसके बाद एडिशन होगी, तो जब डिवीजन चूंकि पहले हो रही है उसके बाद एडिशन होगी, तो ये नो मोर और लेस ये सही चलेगा। इनमें ये कंफ्यूज कर सकता है कंप्यूटर प्लस और माइनस में, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्मार्ट होता है कंप्यूटर, इतना भी बेवकूफ़ नहीं होता, लेकिन ये इसमें गड़बड़ कर सकता है, हम ये कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने सब एक्सप्रेशंस कर लिए और आ, हम इसको चला के देखते हैं, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ एंड मेक इट स्मॉलर। सर लैब कितने बजे है आज का? है वहीं 10 बजे।
Java C example 5 और Java example 5. अब इसमें बस थोड़ा सा हम इसको कंपेयर करते हैं कि ये क्या हो रहा है इसके अंदर. ठीक, इसको सर इस कोड में आप लाइन 18 ऑनवर्ड वाले वो समझा देंगे कमांड्स, मैं उससे आपको ऊपर समझाता भी हूँ. तो. मैं समझाता. ठीक है, एक मिनट से और छोटा कर दूं मैं. ठीक है, कंपैरिजन करते हैं कि नम1 एंड नम2. देखिए यहाँ नम1 नम2 यूज कर रहा हूँ तो ये 10 और 3 लिख रहा है, नम1 नम2 नहीं लिख रहा है क्योंकि ये वेरिएबल्स का नाम है. ठीक है, तो रिजल्ट ऑफ एडिंग 10 एंड 3 इज 13, सब्ट्रैक्टिंग 7, मल्टीप्लिकेशन 30. लेकिन इसमें देखें कि डिवीजन में क्या कर रहा है कि जब मैं 10 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये मुझे 3 दे रहा है. होना क्या चाहिए? इंटीजर है तो 3 देगा, अगर फ्लोट होता या फिर आप राउंड करते तो फिर कुछ दूसरी वैल्यू मिल सकती थी. ठीक है ना, वो इसलिए क्योंकि ये दोनों इंटीजर वैल्यूज हैं. जब इनको मैं डिवाइड करूंगा तो ये मुझे आंसर भी इंटीजर में ही देगा. ठीक है, तो 3.33 होना चाहिए, लेकिन ये उसको इंटीजर ही कंसिडर करेगा तो ये मुझे आंसर 3 देगा इंस्टेड ऑफ 3.333. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अगर आपने ये सही गलती की ना तो आपका पूरा पूरा जो वो है सोल्यूशन वो खराब हो जाता है. एंड पीपल डू दीज मिस्टेक्स. ठीक है, अगर आपने फर्स्ट के आप बैंक के अंदर बैठे हुए हैं और आपने ये वेरिएबल गलत लिख दिए तो जितने भी उसके अंदर पॉइंट्स की डेसिमल की है ना वो सारी वैल्यू राउंड ऑफ हो जाएगी और बेइंतहा बैंक का जो बैलेंस था वो बेइंतहा खराब हो जाएगा. ठीक है, तो वो आप नहीं कर सकते. यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल व्हेन डूइंग समथिंग लाइक दिस. ठीक है, अच्छा. अब ये है कि लाइन 18 की पूछे तो इसमें क्या है, इसमें हम ना रिमाइंडर करें. नम1 जो था 10 था, उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें जो आंसर देगा वो रिमाइंडर देगा. तो 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचता है 1. तो ये बता रहा है कि द रिमाइंडर एक्वायर्ड व्हेन डिवाइडिंग 10 विद 3 इज 1. ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिमाइंडर वैल्यू दे देगा. सर और लाइन 15 में हमने num1 और num2 के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल क्यों डाला? ये स्टैरिक जो है वो प्रोग्रामिंग में स्टैरिक इज मल्टीप्लिकेशन. ठीक है ना, वरना आप क्या कहेंगे एक्स देंगे, एक्स से वो कंफ्यूज हो सर मैं जाएगा. बिफोर ब्रैकेट पूछ रहा हूँ, बिफोर ब्रैकेट num1 प्लस n num2 करें ना. क्योंकि हम इसलिए कर रहे हैं बिफोर ब्रैकेट, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पूरा स्ट्रिंग क्रिएट हो रहा है ना. ये पूरा स्ट्रिंग क्रिएट हो रहा है. ये पूरा स्ट्रिंग क्रिएट हो जाएगा तो उसमें हम ऐड करेंगे जो कि इधर वैल्यू आएगी. इधर जो वैल्यू आएगी विच इज 10 into 3 विच इज 30. तो 30 वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग में ऐड कर दी जाएगी. तो ये क्या करेगा कि 30 को ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और उसको फिर इसमें ऐड कर देगा. ऐड करने के लिए हम प्लस का सिंबल इस्तेमाल करते हैं. इस वजह से आपने ये. इज दैट क्लियर? यस सर, थैंक यू. ओके. छुट्टी नहीं, अभी छुट्टी नहीं. अब num1 को num2 से डिवाइड किया, आपके पास यहाँ पे 3 आया. ठीक है, लेकिन अगर मैं इसका करेक्ट आंसर चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये आंसर जो है फ्लोट में आए, तो मैं इसके सामने फ्लोट लिख दूंगा. So whenever I divide num1 by num2, which is 10 divided by 3, the answer is going to be 3.33. तो उसको 3.33 रिटेन करने के लिए I will need to write float. इसको टाइप कास्टिंग कहते हैं कि एक वेरिएबल दूसरे के अंदर टाइप कास्ट हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास ये देखें आंसर सही आ गया. ठीक है, तो ये छोटी सर अगर हम फ्लोट यूज करें और आंसर अगर इंटीजर में आ रहा हो तो फिर वही इंटीजर में ही आंसर आ जाएगा. नहीं, वो क्या करेगा कि वो जो इंटीजर है ना, फर्स्ट कहेंगे 5 है, तो वो 5 को फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा. इट विल मेक इट 5.0. अच्छा सही. ठीक है ना, सर तो एक चीज पूछनी है, ये इधर फ्लोट जैसे आपने फ्लोट को ब्रैकेट में लिखा, num1 डिवाइड बाय num2 को ब्रैकेट में क्यों नहीं लिखा? नंबर आप लिख दें, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसमें लिख दें. वो क्या करेगा. अच्छा नहीं, मैं बस सोच रहा था क्योंकि वो फिर वैसे ही नहीं प्रिंट कर देगा, क्या कहते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चंस में नहीं आपने किया ना, बताया ये था. नहीं किया. सही सर. एक्सप्रेशन पहले एक्सप्रेशन चलाएगा. अगर आप कर रहे हैं तो अच्छा है कि दिस इज नॉट रॉन्ग. ये अच्छी बात है कि अगर आप कर रहे हो उससे. ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि उससे चीजें क्लियर हो जाती है कि डिवाइड करेगा उसके बाद स्टोरी नहीं. मेरे ख्याल में ये डालने से शायद ही प्रॉब्लम करे. इसको चला के देखते हैं. और सेव नहीं किया.
मेरे ख्याल में ये प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि num1 num2 को डिवाइड करेगा ना, तो ये 10 डिवाइड बाय 3 करेगा, तो ये आंसर हमें इंटीजर में ही दे देगा, ठीक है। उसके बाद ये फ्लोट से टाइप कास्टिंग करेगा, तो मेरे ख्याल में ये शायद प्रॉब्लम करेगा, लेकिन मे बी आई एम रॉन्ग, लेट्स चेक। नहीं सही है, ठीक है, उसने कर दिया उसको कन्वर्ट, तो ये भी ओके काम करेगा, तो दिस इज बेटर। चीज़ों को क्लियर रखते हैं, ठीक है। वो पिछले है उसमें इट कैन कॉज कंफ्यूजन, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, बोथ ओके थिंग्स सर। वर्क, ठीक है। सर एक चीज और सर, लाइन नंबर 20 जो है हम्म, उसको दोबारा लिखना लाजमी था क्या? क्योंकि नहीं वेरिएबल हमारे चेंज नहीं हुए हैं। नहीं, अगर हम, अच्छा सही। वो इससे लिखिए ताकि आप कंपेयर कर सकें ना, कंपेयर करने में आसानी है। मुझे क्या करना था, हाँ मैंने तो सिंपली इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया था तो मुझे कोई इतना मसला हाँ नहीं था, वो बस ठीक है। सही। वो आप थैंक यू। लोगों को दिखाने के लिए किया, जी सर। ठीक है। तो फिर सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब हम लैब में मिलते हैं, तो बाकी बात फिर लैब में होगी, ठीक है। सर यही मीटिंग आईडी है ना? नहीं, उसकी लैब की सेपरेट आईडी है। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।